اور سب سے بڑھ کر آج خداوند نے ہماری زندگیوں میں یہ موقع بخشا کہ ہم اس کے کلام کو سنیں، کیونکہ خدا کا کلام ایسا کلام ہے کہ یہ جب کھلتا ہے تو بے تاثیر نہیں لوٹتا، یہ اپنی تاثیر چھوڑ کر جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تمہارے عزیزو، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اگر خدا کے کلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو خدا کے کلام میں ہمیں کوئی ایسی مشن نظر نہیں آتی جو خداوند یسوع مسیح نے مقرر کی ہو کہ یہ مشن ہے، اس مشن کے ساتھ آپ نے چلنا۔ ہمیں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ملتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں۔ 7 کلیسیاں ہیں اور 7 کلیسیاؤں میں خداوند یسوع مسیح پھرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح 7 کلیسیوں کے اندر جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ کلیسیاں جو ہیں، یہ جیسے یہ باولا ہے، جیسے گڑی شو ہے، یعنی کہ مختلف شہروں کے نام ہیں، تو مختلف شہروں کے نام جو ہیں یہ 7 کلیسیاں ہیں۔ مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ آسیہ کی کلیسیا، تھواتیرا کی کلیسیا، اسی طرح ہمیں 7 کلیسیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ کہیں بھی ہمیں یہ نہیں لکھا ہوا ملتا کہ فلاں مشن ہے، فلاں مشن ہے۔ یہ تمام جو مشنیں ہیں یہ ہم انسانوں نے ڈیسائیڈ کی ہیں۔ تو آج میں چاہوں گا کہ ہم ان مشنوں پر توجہ نہ دیں بلکہ خدا کے کلام کی طرف توجہ دیں، غور کریں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں آزاد کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں رہائی بخشتا ہے۔ کوئی بھی ایسی مشن نہیں جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ میرے عزیزو، صرف خدا کا کلام ہی جو زندہ کلام ہے وہی ہمیں بچاتا ہے اور وہی ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ میرے عزیزو، جب کلام کھلتا ہے تو لکھا ہوا ہے کہ خدا کا منہ کھل جاتا ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ اپنے خدا کے خادم کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بولنے والے تم نہ ہوگے بلکہ میرے باپ کا روح ہوگا۔ تو میرے عزیزو، جب خدا کا خادم خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے تو کلام بیان کرتا ہے کہ وہ بولنے والا وہ نہیں ہے بلکہ اس کا روح ہے جو خدا کے خادم کے ذریعہ سے آج ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میں ہر بار ایک بات کرتا ہوں کہ جب بھی خدا کا کلام بیان کیا جائے، کوئی بھی خادم خدا کے کلام کو بیان کرے، یا اس وقت اس جگہ پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات ان کے لیے بھی ہے کہ آپ یہ رکھیں ذہن میں کہ یہ خدا کا کلام جو ہے میرے لیے آخری ہو سکتا ہے۔ شاید اس کے بعد میرے پاس ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ میں خدا کے کلام کو سن سکوں، یا خدا کا خادم بھی یہ بات ذہن میں رکھے کہ شاید یہ آج کا جو میں کلام پیش کر رہا ہوں، یہ آج کا کلام میرے لیے لاسٹ کلام ہو سکتا ہے، اس کے بعد میرے پاس ایسا موقع نہیں ہے کہ میں خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ اور خدا کے کلام کو جب بھی شیئر کریں پوری سچائی کے ساتھ، خدا کے کلام کی سچائیوں کو بیان کرے خدا کا خادم، اور سننے والے بھی اس کو ریسیو کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ کان تو ہم سب کے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ خدا آج شام ہمیں سننے والے کان بخشے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سنیں اور سننے والے نہ بنیں بلکہ اس کو اپنے دل میں رکھ سکیں، ذہن میں ذہن نشین کر سکیں، کیونکہ خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف کیا نہ کروں جی، گناہ نہ کروں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام کی طرف آتے ہیں جو خدا نے میرے ذہن میں ڈالا، میرے دل میں ڈالا، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور
हम जब किसी को बपतिस्मे के लिए तैयार करते हैं तो हम बपतिस्मा पर कलाम देते हैं ताकि ये बंदा बपतिस्मा के बारे में जान सके। हमने पिछले संडे भाई को, इसकी वाइफ को मखसूस किया और उस जगह पर जो कलाम शेयर किया गया, खुदा के खादम पास्टर शबीर साहब ने शेयर किया मखसूसियत के बारे में। और आज जो मैं खुदा का कलाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये दोनों मियाँ बीवी खिदमत में उतरे हैं, खुदा की खिदमत करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम सब इस बात को जानें कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, हमने क्या खिदमत करनी है, हमने किस तरह खिदमत करनी है। इसी बारे में मैं आज आप सबसे बात शेयर करूंगा। खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, हम निकालेंगे मत्ती की अंजील निकालेंगे हम सब। बड़ा मशहूर हवाला है आज का, इसको रशाद आज़म भी कहते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं। ये सब बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस जगह पर की हैं, अपनी ज़ुबान मुबारका से हम तक पहुंचाई हैं। हम आज इस बात को जानेंगे। मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 19 आयत निकालेंगे। जी निकालिए। जी मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना आज हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस नसीहत ठहरे। सब आमीन कह सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ी आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करने वाला हूँ, बड़ी सीखने वाली बात है। मैं चाहता हूँ कि हम सब इस बात की तरफ तवज्जो करें जो खुदावंद यीशु मसीह आज हमें बता रहे हैं इस जिंदा कलाम के जरिया से। मेरे अज़ीज़ों, लिखा हुआ है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे अज़ीज़ों, ये बात थोड़ी सख्त भी हो सकती है, लेकिन खुदा के कलाम में जो लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि आज हम इस भेद को जानें, क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये भेद है, ये मुकाशफा है, ये सीखने वाली बात है। ये जो बातें डिसाइड की गई हैं, ये तकरीबन 325 में डिसाइड की गई हैं। अगर हम इनको अकाउंट करें तो तकरीबन 1700 साल 1800 साल इतने बनते हैं जब ये बातें डिसाइड की गई हैं कि हम किस तरह इस काम को लेकर आगे चलें। और आज मैं जो बातें देख रहा हूँ मुख्तलिफ चर्चिज में, ये खुदावंद यीशु मसीह के काम को जो आगे पहुंचा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, जैसे बताया गया इसी तरह ही डिलीवर हो रही है ये बात। लेकिन आज मैं एक भेद की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात की, मैं मानता हूँ ये बात लिखी हुई है, की गई है, लेकिन इससे आगे कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मेरा ख्याल है कि ऐसी अपनी कौम ने शागिर्द बना ली तो बड़ा मुश्किल काम है। साड़ी कौम ही कहना नहीं मानती, दूसरे यानी कि सब कौमों को किस तरह शागिर्द बना सकते हैं। और लिखा हुआ है कि उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा। अच्छा, 3 नाम लिए जा रहे हैं इस जगह पर, बाप और बेटा और रूह कुदस। जो मैं बात आपसे करना चाहता हूं, क्या कभी दुनिया में किसी का नाम बाप सुना हो? बाप किसी का नाम रखा गया हो या सुना गया हो? कोई भी नहीं लगता कि ये इसका नाम, ये मेरा बेटा पैदा हुआ है, इसका नाम है बाप रखा। नहीं हो सकता। या बेटा पैदा हुआ है, उसका नाम बेटा रख दिया जाए, नहीं हो सकता। और रूह कुदस किसी का नाम नहीं सुना, क्योंकि रूह कुदस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह।
اور باپ ایک لقب ہے. باپ کیا ہے جی؟ ایک لقب ہے. جیسے میں باپ ہوں، میرے بیٹے ہیں، ان کا ایک نام ہے، میرا اپنا ایک نام ہے. اسی طرح خداوند یسوع مسیح جو بتا رہے ہیں کہ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو تمام خادمین جو بپتسمہ دے رہے ہیں وہ اسی طرح ہی دے رہے ہیں کہ میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. اسی طرح ہی ہم سب سنتے آ رہے ہیں. لیکن میرے عزیزو، اس بات کو غور کریں، کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں سے کچھ زیادہ آگے نکل گئے ہیں؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پوری بائبل میں خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے اس طرح بپتسمہ نہیں دیا ہوگا. کہیں بھی لکھا ہوا ہمیں نہیں ملتا کہ خداوند یسوع مسیح جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے، اس کے شاگردوں، انہوں نے اس نام سے بپتسمہ دیا ہو. تو خادم جو ہے وہ شاگردوں سے آگے نکل چکے ہیں. جو ڈیسائیڈ کیا گیا اس کو لے کر چل رہے ہیں. جو انسانوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس طرح بپتسمہ دیا جائے، اسی طرح بپتسمہ دیا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم آج بائبل میں دیکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ کیسے بپتسمہ دیا جا رہا ہے. کسی بھی شاگرد نے ایسے بپتسمہ نہیں دیا. کیا وہ شاگرد جو تھے خداوند یسوع مسیح کی بات نہیں مان رہے؟ کیوں نہیں اس کی بات کو مان رہے جب خداوند یسوع مسیح واضح طور پر ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جا کر باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو؟ تو کیوں شاگرد اگنور کر رہے ہیں اس بات کو؟ کیوں شاگرد خداوند یسوع مسیح کی بات کو مان نہیں رہے؟ کیوں؟ میرے عزیزو، ایک چھوٹی سی بات اور کرتا ہوں کہ اگر ہمارا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے اور وہ اپنا ناشتہ جو ہے، جو لنچ باکس ہے، وہ اپنے گھر بھول گیا ہے، تو ہم اسکول میں جاتے ہیں، تو کیا ہم جا کر یہ کہیں گے کہ یہ لنچ باکس جو ہے میرے بیٹے کو پہنچا دو؟ کیا وہ لنچ باکس بیٹے تک پہنچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جب تک بیٹے کا نام بتایا نہ جائے. اور بیٹے کا نام بتائیں گے تو وہ لنچ باکس جو ہے وہ اس کے پاس پہنچ جائے گا. تو بیٹے کا نام کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں، بیٹے کا نام کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح بیٹا بن کر اس دنیا میں آیا، تو اس کا نام کیا ہے؟ مقدسہ مریم کے پاس جب فرشتہ آتا ہے تو کیا پیغام لے کر آتا ہے؟ کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ یسوع رکھنا. یسوع نام، خداوند یسوع مسیح کا نام بیٹا نہیں ہے، یسوع نام ہے. اور یسوع نام ہی ہے جو ہمیں رہائی بخشتا ہے. یسوع نام کے علاوہ کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے جو ہمیں آزاد کر سکے، ہمیں بحال کر سکے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، ہم اگر یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 43 آیت کو دیکھتے ہیں تو ادھر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ آسمان پر بھی یہی لیا جا رہا ہے. باپ کا نام کیا ہے؟ ادھر لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں. اب باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام بھی یسوع ہی ہے. یسوع نام ہے باپ کا. اور ہم جب بپتسمہ دیتے ہیں ان 3 ناموں سے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نام خداوند یسوع مسیح کے نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کا جو نام ہے وہ یسوع ہی ہے. بیٹا، باپ یا روح القدس اس کا نام نہیں ہے، یسوع نام ہے. اور ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بھائی اسماعیل نکالیں، اعمال کی کتاب نکالیں. اعمال کی کتاب اور اس کا 19 باب، پہلی آیت سے 6 آیت تک پڑھیں. 19 6 آیت تک پڑھیں. ہم بڑی توجہ سے اس بات کو سیکھیں گے کہ پالوس رسول جو ہے وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں.
अमाल की किताब उसका 19 बाब पहली आयत से 6ठी आयत तक हम पढ़ेंगे। और जब पलूस करंथिस में था तो ऐसा हुआ कि पलूस ऊपर के इलाका से गुजर कर इफिसुस में आया और कई शागिर्दों को देखा कि उनसे देखकर उनसे कहा, क्या तुम ईमान लाते वक्त रूह कुछ पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुछ नाज़िल हुआ है। उसने उनसे कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पलूस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पलूस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। जी मेरे अजीजों, पलूस जब करंथस की कलीसिया के पास गया, करंथस की कलीसिया में जाकर जब उसने उन लोगों को देखा और उनसे पूछा, क्या तुमने बपतिस्मा लाते वक्त रूह कुदस पाया? वो कहते हम तो जानते भी नहीं है ये रूह कुदस है क्या, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना के नाम पर बपतिस्मा लिया था। लेकिन यूहन्ना हमें बताते हैं कि मेरे बाद जो आने वाला है वो जोरावर है। मेरे अजीजों, पलूस जो है इधर खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दे रहे हैं। बाप और बेटे का नाम का बपतिस्मा हमें नजर नहीं आ रहा। और लिखा हुआ है कि जब पलूस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसने हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर क्या हुआ जी? नाज़िल हुआ। असीसो बाइबल में जो हमें बपतिस्मा मिलता है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम का मिलता है। आप तसल्ली से किसी से भी ये सवाल कर सकते हैं कि ये क्या किसी शागिर्द ने इस तरह बपतिस्मा दिया हो, तो आप सवाल कर सकते हैं किसी से भी कि बाइबल में लिखा हो। बाइबल में नहीं मिलेगा। बाइबल में बहुत सारी जगहों में हमें लिखा हुआ मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का नाम बेटा है, खुदावंद यीशु मसीह का नाम बाप है। अगर 3 नामों से दिया जाता तो लिखा जाता कि मैं इनके नामों से बपतिस्मा देता हूँ। यीशु मसीह जो बात हमसे कर रहे हैं वो सीखने वाली बात है, राइट बात है। वो बता रहे हैं कि इस नाम से बपतिस्मा दो। नामों से बपतिस्मा नहीं दिया जा रहा, नाम से दिया जा रहा है और वो नाम यीशु मसीह है। और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो थे वो इस भेद को जानते थे, इसलिए उन्होंने इस नाम को जो है वो इस्तेमाल किया, क्योंकि यीशु नाम ही है जिससे हम रहाई पाते हैं, जिससे हम निजात पाते हैं। हालेलुया। एक और हवाला देखेंगे। हवाले तो बहुत सारे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सीखे थोड़े वक्त में इस बात को जानें, ताकि हम जब खुदा के कलाम की मनादी करें तो वो मनादी खुदा के कलाम के मुताबिक हो। हम जब लोगों तक पहुंचे और उनको इस बात पर कायल करें कि जो बपतिस्मा है, जो दुरुस्त बपतिस्मा है, वो यीशु नाम से है, किसी और नाम से बपतिस्मा नहीं हम दे सकते। बाइबल में हमें बहुत बपतिस्मे मिलते हैं, यूहन्ना के नाम का, नूह के नाम का, मूसा के नाम का। लेकिन मेरे अजीजों, वो बपतिस्मे जो थे हमें बचा नहीं सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ वो बपतिस्मा बचा सकता है वो जो यीशु मसीह के नाम पर है। हालेलुया। हम इमाल की किताब में से ही देखेंगे, इमाल 2 बाब और 36 आयत में से 36 से 38 तक। इमाल 2 बाब उसकी 36 आयत से
36 आयत तक पढ़ेंगे। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तुम रूह कुछ इनाम में पाओगे। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदाम की खास बरकत हो। शुक्र हो मेरे अजीजों, ये हमें दूसरा वाला मिल रहा है जो पतरस रसूल बपतिस्मे दे रहे हैं। मेरे अजीजों, ये जो पतरस रसूल के पास लोग आए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को छेदा था। अब उनको पता चल गया है कि हमने तो खुदावंद को छेद दिया, हमने तो खुदावंद को सलीब पर चढ़ा दिया, अब हमारी मुआफी कैसे हो सकती है? हम क्या करें कि हम बच जाएं? हमने तो गुनाह कर दिया है, बहुत बड़ा गुनाह हमसे हो गया है। अब वो लोग पतरस से आकर बात कर रहे हैं कि हमें बता कि हम क्या करें ताकि जो गुनाह हमसे हो गया है हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो मेरे अजीजों, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो और रूह कुदस इनाम में पाओ। मेरे अजीजों, उनके दिलों पर ठेस लगी और तब वो पतरस के पास आए और उन्होंने पतरस से दुरुस्त बपतिस्मा लिया। और वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को छेदा था, वो बपतिस्मा के वसीला से क्या हो गए जी? रहाई पा गए, बहाल पा गए। दुरुस्त बपतिस्मा जो है, बाइबल जो हमें बताती है वो यही है कि यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया जाए। हम जो बपतिस्मे ले रहे हैं, खुदा के खादम, मैं बुरा नहीं कहता उनको, और जो लोग उनसे बपतिस्मे ले रहे हैं उनका ये कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है। जैसे खुदा के खादम बपतिस्मा देते हैं, वो ले लेते हैं, उनका बपतिस्मा हो जाता है, क्योंकि बपतिस्मा जो है वो एक ही बार होता है। बार बार बपतिस्मा हम नहीं ले सकते, एक ही बार, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि एक ही बपतिस्मा और एक ही ईमान, और हमारे खुदा कितने हैं? एक ही खुदावंद है। तो बपतिस्मा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर लिया जाता है। तो मेरे अजीजों, मैं चाहता हूँ कि हम जब खिदमत पर निकले, भाई आमिर आपके लिए है, हम जब खिदमत पर निकले तो हम जब खुदा के कलाम को शेयर करें तो पूरी सच्चाई से जो बाइबल हमें बता रही है हम उस तरह खिदमत करें, ताकि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह से दूर हैं, खुदावंद यीशु मसीह की जो भेड़ें भटकी हुई हैं, भूली हुई हैं, जो खुदावंद को नहीं जानती, उनको हम दुरुस्त बपतिस्मा दें जो खुदा के कलाम में हमें मिलता है। और खुदा का कलाम हमें आज यही बात सिखा रहा है कि हम जब भी बपतिस्मा लें तो यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें, क्योंकि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों में से किसी और को कोई नाम बख्शा नहीं गया कि जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। ये खुदा के कलाम की सच्चाई है, खुदा के कलाम की सदाकत है जो मेरे दिल में खुदा ने डाली कि मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि हम दुरुस्त तलीम की तरफ बढ़ें जो खुदा के कलाम में हमें मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। अज़ीज़ों, हवाले तो बहुत सारे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े वक्त में हम इस बात को सीखें, ताकि इस बात को हम अपने ज़हन में रख सकें और दुरुस्त तलीम की तरफ आएँ। मैं ये नहीं कहता कि ये तलीम मैं दे रहा हूँ, ये तलीम जो मैं आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं हवालों के साथ आपको खुदा के कलाम में से शेयर कर रहा हूँ। तो कोई आपसे बात कर सकता है, तो इसलिए मैंने हवाले आपको नोट करवाए हैं। आप बात कर सकते हैं किसी खादम के साथ कि हमें तो पास्टर वसीम ने ये बताया है,
बात हो सकती है। हमारे घरों में खादमीन आते हैं तो आप बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि हमारे इलाका में या हमारे घर के साथ हमारे मोहल्ला में एक पास्टर वसीम रहते हैं, उन्होंने हमें खुदा के कलाम में से ये बात बताई है कि बपतिस्मा जो है वो एक ही बार होता है और बपतिस्मा जो है वो दुरुस्त होना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि इसके बाद हमारे पास मौका नहीं है। ये बपतिस्मा जो है बहुत अहम है हमारी जिंदगियों के लिए। और एक और बात आपको बता दूं, जिनके माँ बाप बपतिस्मा ले लेते हैं उनके बच्चों को 18 साल तक यानी कि बालग होने तक कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनके वालिदैन ने जो है वो बपतिस्मा ले लिया हुआ है और वो 18 साल तक उनके बच्चे जो है वो महफूज हो चुके हैं। जब वो बालक हो गए हैं, वो जब नेकी और बदी को जान गए हैं, तो उनके बाद उनके माँ बाप जो है वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 18 साल तक माँ बाप ने संभाला। 18 साल के बाद हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह में आने के लिए या खुदावंद यीशु मसीह के साथ शामिल होने के लिए हमें कोई भी ऐसी मिशन नहीं है जो रोकती है, क्योंकि हमने किसी मिशन को खुश नहीं करना, हमने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हवाले करना है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ मरना और जीना है। जैसे खुदा का बंदा पौलुस हमें सिखाता है कि जब उसने बपतिस्मा ले लिया तो उसने कहा कि मेरा जीना मसीह और मेरा मरना नफा है, और इस नफे को जो फ्री में हमें मिलता है हम अपनी जिंदगियों में लें, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के बेटों और बेटियों में शामिल हो सके। हालेलुया। बड़े परेशान होकर बैठे हैं। खुदा के कलाम को जब सुने तो बड़ी गौर से, तवज्जो से और खुशी से सुने, खुशी से, अफसोस के साथ नहीं, बड़े परेशान होकर। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा जो खुदा के कलाम से हटकर है, खुदा के कलाम के अंदर से ही मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। मैं मैसेज कुछ और देना चाहता था लेकिन मुझसे दिया नहीं जा रहा था, तो फिर मेरे दिल में ये आया कि शायद ये मैसेज है भाई आमिर के लिए है, क्योंकि इन्होंने मखसूसियत इनकी हुई है और इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के लिए निकलना है, तो ताकि इनको बताया जाए इस चीज़ के बारे में, ये दुरुस्त तालीम खुदावंद की जो है